Hello students, in unit number 6, General Principles and Process of Isolation of Elements, in last lecture we completed extractions of iron from its oxide, right? In last point that we have to discuss about the pig iron and cast iron, and today we little bit concentrate on wrought iron. So is the another type of iron which is called as a wrought iron. So what is the meaning of wrought iron? The word itself suggests that the wrought iron is the purest form of the commercial iron. You know that in the case of pig iron, there is a presence of 4% of carbon and many impurities in smaller amount like sulfur, phosphorus, silicon and manganese. It's called as a pig iron, right? And then it can be molded into the varieties of shape. And cast iron is a different type of pig iron. It is made by melting iron with a scrap iron and coke using hot air blast. So it has a slightly lower carbon content, means up to 4% to decrease up to 3%, and it's extremely hard and brittle. It's called as a cast iron. But what is the wrought iron? So wrought iron is the purest form of the commercial iron, and it contains about 0.2 to 0.5. So it's a very low amount of carbon besides trace of phosphorus and silicon in the form of slag. And this carbon in wrought iron is present partly as a graphite and partly as a cementite, right? Means in the case of Fe3C formation, Fe3C, right? This wrought iron is a ductile, soft and malleable. The presence of slag in it makes it tough and resistance towards rusting and corrosion. Therefore, it is used to make chains, anchor, bolts, nails, railway carriage coupling, and it can be easily magnetized. Hence, it is used to make magnet in electric cranes and dynamos. So, this is all about the wrought iron, right? So, wrought iron, how we prepare this wrought iron? So, wrought iron is prepared from cast iron, not from pig iron, okay? From cast iron by decreasing the carbon content and oxidizing impurities in a river battery furnace lined inside with hematite. This hematite oxides carbon to carbon monoxide, sulfur to sulfur dioxide, silicon to silicon dioxide, phosphorus to phosphorus pentoxide and manganese to manganese oxide. So here Fe2O3 when reacts with carbon, so is converted into Fe, NCO. Same way Fe2O3 is related with a carbon, so Fe, SO2. Same way MnO2 and SNO2, SiO2 which is converted into magnesium silicate, and phosphorus is converted into ferric phosphate. So here for this purpose sometimes we have to use a limestone is added as a flux. So this is all about the प्रिपरेशंस ऑफ रॉट आयन, यानी जो हमें प्रिपरेशंस करनी है रॉट आयन की जो प्रिपरेशंस है तो हम इस तरह से करेंगे. हमारे जो सिलेबस में यहाँ पे जो हमारा जो पॉइंट अभी चल रहा है वो क्या था, हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पायरोमेटलर्जी था, और उसमें भी हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. उसमें से हमारे जो सिलेबस में यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, आयन में से, कॉपर में से और तीसरा जिंक वाला है. तो अभी हम चले जाएंगे, कहां पे हम चले जाएंगे, नेक्स्ट में हम क्यूप्रस ऑक्साइड जैसे हमारा हो Cu+1 ऑक्साइड, उसमें से हमें कॉपर निकालना है, तो हम किस तरह से निकाल पाएंगे. तो देखिए ये यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको पहले देखना चाहेंगे. पहले आप समझिए, ये पूरा एलिंगम डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. एलिंगम डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा उसके लिए फोकस किया था, उस दिन भी मैंने किया था. देखिए यहाँ पे जिंक वाला है. अब देखिए सडन चेंजेस मैंने अभी आपको तभी भी बोला था, सॉलिड टू लिक्विड होने की वजह से डेल्टा एस ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए डेल्टा जी कम हो रहा है. 1180 पे ये सडन ट्रांजिशन टेम्परेचर हम इसको बोलेंगे. ये जो कार्बन वाला है O2 वाला, तो वो तो स्ट्रेट ही चल रहा है, लेकिन दो जगह पे यहाँ पे
यहाँ पे कट हुआ है, तो हमने उसको बोला था ना कि जहां पे जो होता है क्रॉस टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं, ये CO वाला है और ये कॉपर वाला है। तो कॉपर वाला तो बहुत आगे चल रहा है, समझ में आ रहा है। उसका जो डेल्टा जी है वो बाकी सभी से डेल्टा जी उसका कम नेगेटिव है, यानी वो ज्यादा डेल्टा जी उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाना हो, डेफिनेटली वो डेल्टा जी नेगेटिव ही है, लेकिन फिर भी मुझे उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना हो तो आइदर आई हैव टू यूज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं कार्बन भी ले सकता हूं और ये मैं भी ले सकता हूं, ये भी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला भी ले सकता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड भी मैं जिंक भी ले सकता हूं, क्योंकि सभी जो है उसके नीचे वाले हैं। फिर भी मुझे उसमें से मुझे पसंद करना है कि मुझे कौन सा यहाँ पे मेरे लिए इजी होगा। तो जितना टेम्परेचर कम होता है तो वो मेरे लिए बढ़िया है, वो मेरे लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए अपने 1180 पे यहाँ पे जो क्रॉस यहाँ पे ये हो रहा है, राइट, और ये जो क्रॉस हो रहा है वो 1270 केल्विन पे क्रॉस हो रहा है। अब पहले जो आप एलिंगम डायग्राम आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए ये जो Cu2O को Cu में मुझे ले जाना है, राइट। यहाँ पे ये भी एलिग्राम डायग्राम है, जिंक ऑक्साइड को हम जिंक में ले जाएंगे, इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन में और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में हम किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं उसका मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है। अभी हम धीरे धीरे ये कहानी शुरू करेंगे। इन द एलिग्राम डायग्राम विच इज सॉन इन फिगर नंबर 6.8 आप अभी देख रहे हैं, तो आप देखिए जो ये CO2 वाला ग्राफ है इट इज ऑलमोस्ट एट द टॉप, ये टॉप पे चला गया है। दूसरा जो आप देख रहे हैं कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लाइंस मच बिलो इन पर्टिकुलरली इन द टेम्परेचर फ्रॉम 500 to 600 केल्विन के आसपास ये चल रहा है। आपको समझ में आ रहा है? दिस मीन्स दैट इट्स वेरी इजी टू रिड्यूस क्यूप्रस ऑक्साइड टू मेटालिक कॉपर बाय हिटिंग विथ आइदर कॉक। अभी कोक में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा टेम्परेचर आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द ओर्स ऑफ कॉपर्स आर सल्फाइड्स होती है, जैसे Cu2S, FeS, जैसे मैंने आपको बोला था आपको उसको क्यूप्राइट हम बोलेंगे, तो वो जो ज्यादातर उसकी जो ओर होती है वो सल्फाइड की तरह से होती है। देयरफॉर सल्फाइड ओर्स फर्स्टली कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस and roasted in a river battery furnace to convert them into oxides। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं Cu2S है, उसका ऑक्सीडाइज किया हुआ है which is converted into CO2 और SO2 निकल जाएगा। Now these oxides can be reduced to metallic copper oxide using coke as a reducing agent। तो मैं कोक का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, Cu2O2 तो मैंने यहाँ पे मिल गया, लेकिन ये जो है वो ऑन पेपर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या आता है आप देखिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस में यह होता है कि सल्फाइड और जो मेरे पास होती है, राइट, जिसे कॉपर पायराइड्स में होती है, तो आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज रोस्टेड इन रिवर बैटरी फर्नेस। जैसे मैंने यहाँ पे जो उसकी जो पूरी में आपको यहाँ पे जो कहानी है वो दिखाना चाहता हूं, ये कॉपर पायराइड से उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो डेफिनेटली वो Cu2S और FeS में चला जाएगा। ये FeS हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, राइट। वो FeS को भी FeO में डाल देगा और Cu2S को Cu2O में डाल रहा है, समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली आयन होता है विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो पहले क्या होगा, FeS है वो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज FeO में चला जाएगा, फिर बाद में Cu2S का Cu2O में आएगा। इफ ऑल एनी Cu2 इज फॉर्म, सो इट्स अभी देख क्या हुआ, आपने Cu2S को Cu2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरह से FeS को FeO में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कभी ऐसा भी होगा ना कि आपका जो FeS वाला पोर्शन है वो Cu2O के साथ जुड़ के फिर Cu2S में ला देगा। ये भी प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। दस रोस्टेड आर और मेनली कंटेन्स Cu2S एंड FeO along with some unreacted FeS। ये थोड़ा प्रॉब्लम को मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर ये मेरा जो FeS है वो FeO में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, और फिर उसने Cu2S में डाल दिया है, अभी ये जो दोनों का मिक्सचर है वो तो मुझे साथ में मिलेगा, राइट। उसका जो मेनली कंटेंट्स मुझे यही मिलेगा और थोड़ा अनरिएक्टेड FeS भी होगा।
तो मुझे क्या है, मुझे ये FeO को निकालना है। तो FeO यानी आयन ऑक्साइड है, आयन ऑक्साइड है यानी मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है यानी वो आयन यानी वो बेसिक इन नेचर यानी अल्कलाइन नेचर है। तो मुझे उसमें फ्लक्स डालना पड़ेगा, एसिडिक फ्लक्स, जैसे SiO2 जैसे है वो एसिडिक फ्लक्स है। तो मैं जैसे उसमें डालूंगा, द रोस्टेड और इज देन मिक्स विथ सिलिका एंड सम पाउडर कॉक, राइट। तो उससे क्या होगा कि जो FeO है वो SiO2 के साथ जुड़ के कहां पे चला जाएगा, फेरस सिलिकेट में चला जाएगा और स्मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, राइट। और ये जो फेरस सिलिकेट है वो फ्यूजिबल जो है वो वहां पे मुझे मिल रहा है। सो एट द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस द एंटायर मास मेल्ट्स एंड 2 layers of molten mass are formed. The slag being lighter makes the upper layer, which can be withdrawn from the slag hole from time to time. और द लोअर मोल्टन लेयर जो होता है उसको हम कॉपर मेटे बोलते हैं। कॉपर मेटे में ज्यादा से ज्यादा आपको Cu2s मिलेगा और थोड़ा यहाँ पे Fe(S) मुझे यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, उसमें से मुझे प्योर कॉपर निकालना है मेटे में से। तो द मोल्टन मेटे इज ट्रांसफर टू बेसीमर कन्वर्टर। एक ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है वो एक बेसीमर कन्वर्टर है विच इज पियर शेप। ये पियर शेप का जो कन्वर्टर होता है यहाँ पे मेड अप ऑफ अ स्टील एंड लाइन इनसाइड विद द सिलिका। सो इट इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे हम यहाँ पे इस तरह से उसका एक्सिस हम हिला सकते हैं एंड कैन बी टिल्टेड इन एनी पोजीशन। इट इज फिटेड विद अ स्मॉल पाइप्स कॉल्ड एज ट्यूएट्स थ्रू विच अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर एंड फाइन सैंड इज एडमिटेड। अभी क्या होगा, उसमें जो भी मेरे पास FeS है उसको मैं FeO में कन्वर्ट कर दूंगा और ये FeO सिलिका से मिलकर उसका सिलिकेट बना देंगे। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ बेसिमराइजेशन जो भी मेरे पास सल्फर है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इम्प्यूरिटी की तरह है, वो मेटे में से निकल जाएगा उस वोलेटाइल ऑक्साइड में। और जो मेरा FeS था, मैंने अभी ज्यादा ऑक्सीजन दिया हुआ तो FeO हुआ और वो सिलिका के साथ जुड़ के वो उसका स्लेग निकाल देगा। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, FeS, O2, FeO, SO2, इस तरह से सिलिकेट। नाउ द स्लेग thus formed melts and floats on the top of the molten mass and it's removed. When the whole iron has been removed as a slag, some of the cuprous sulfide undergoes oxidation to form a cuprous oxide, right? यानी Cu2s का Cu2 में चला जाएगा और Cu2 फिर से Cu2s के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके कॉपर में आ जाएगा। So now this copper metal produce falls below tubes and thus escapes the oxidizing actions of the blast, right? तो ये जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है उसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलेंगे। और ये जो ब्लिस्टर, देखिए मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, जो कॉपर मुझे यहाँ पे मिला है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शंस द कन्वर्टर इज टिल्टेड एंड द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन अ सैंड मोल्ड एज द मेटल कूल dissolved SO2 escapes. So some of the gas bubbles are however entrapped during this solidification, giving blister-like appearance to the metal. So this impure metal means containing 1% impurity thus obtained is therefore called as a blister copper. And this blister copper is finally purified either with the help of refining, जो हमने वो जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके उसमें मुझे कॉपर के इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड में, मुझे एनोड और कैथोड में, कैथोड 99.99% में लूंगा और वो जो एनोड वाला है वो यहां से लूंगा तो इसमें से इंप्यूरिटी निकल जाएगी। तो ये जो आपने पूरा देखा, अभी आपने जो पॉइंट यहाँ पे दिखा वो क्या था, वो जिंक अभी कॉपर वाला था। तीसरा वाला भी हमने यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है और वो है extractions of zinc from zinc oxide, right? तो अभी मुझे ये देखना होगा कि extractions of zinc from zinc oxide किस तरह से होता है। अभी आगे वाला मैंने जो अभी आपको एलिंगम डायग्राम दिखाया था फिगर 6.8 में अभी हमने देखा था, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जिंक ऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कर्व्स है वो इसका इंटरेक्शन सेक्शन होता है विच इज लाइज एट अ हायर टेम्परेचर। जैसे कॉपर से ज्यादा होता है, यानी रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विथ कोक इज कैरिड आउट एट अ हायर टेम्परेचर देन दैट ऑफ कॉपर। दूसरा क्या होता है, ऑल थ्री कर्व्स रिप्रेजेंटेटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन यानी C2CO, C2CO2 and C2CO2 lies above the oxidation of zinc till the boiling point of zinc is reached.
तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 1180 केल्विन से हम आगे बढ़ेंगे, राइट. So at that time CO decreased, while therefore the formation of zinc oxide increased very rapidly and intersects the curve at 1270 Kelvin. दूसरी भाषा में हम बोले तो बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाए तो 1270 केल्विन से हम ज्यादा लेंगे तो क्या होगा कन्वर्ट क्या होगा. सो वेयर द डेल्टा एफ जी स्टैंडर्ड फॉर जिंक ऑक्साइड इज हायर देन दैट ऑफ द CO2 एंड CO फ्रॉम कार्बन. सो 1270 से हम ज्यादा जैसे चले जाएंगे तो जिंक ऑक्साइड बाय कार्बन इज नेगेटिव, हेंस जिंक ऑक्साइड इज इजीली रिड्यूस्ड बाय कॉक 1270 Kelvin, but for the purpose of reduction, zinc oxide is made into briquettes with a coke and clay heated above 1270. Usually 1673 पे चला जा रहा है. मैंने एक लेक्चर में बोला था आपको एलिंगम के कि ज्यादा टेम्परेचर अगर हो तो कोक ही आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर में कोक का भी थोड़ा प्रॉब्लम्स यहाँ पे होता है, राइट. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज 1180 केल्विन है, तो यानी द मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड कलेक्टेड बाय द रैपिड चिलिंग. तो उसकी वजह से मैं यहां से उसको निकाल सकता हूं. ये जो जिंक ऑक्साइड वाला जो पॉइंट था वो भी हमने यहाँ पे खत्म किया हुआ है. तो ये पूरा एलिंगम डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट था. ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हायर टेम्परेचर आई हैव टू यूज अ कॉक, राइट. लोअर टेम्परेचर में मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का या कुछ इसका इस्तेमाल कर सकता हूं. अभी जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, राइट. तो मुझे जो प्रोसेस है, अभी देखिए मैं आपको एक प्रोसेस की और बात कर रहा हूं मेटलर्जी में. एक आपने वर्ड सुना होगा, देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड्स टू द मेटल. अभी क्या हुआ था, मैंने क्या लिया था, रिड्यूसिंग एजेंट लिया था, राइट, विद द हेल्प ऑफ. लेकिन यहां पे अभी क्या होगा, एल्यूमिनियम पाउडर में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लू तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एल्यूमिनोथर्मी. उसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनोथर्मी हम उसको बोल सकते हैं, राइट. और हम इसको क्या बोलेंगे, गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं. गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस भी हम उसको बोल सकते हैं. तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो पोर्शंस मेरा अभी मेरा पोर्शंस क्या चल रहा है कि मुझे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स की बात यहाँ पे मुझे करनी है. तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत धीरे धीरे आप समझिए. वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैव बीन यूजफुल. तो किस तरह से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस वाला फॉर्मूला हमने देखा था. In the choice of suitable reducing agent for a given metal oxide and in the selection of an optimum temperature at which reductions will proceed smoothly. ये हमारा जो प्रिंसिपल था या हमारा गोल था, ये हमारा एम था, वो हमने देखा है. The same principle can also be applied in the reduction of metal ions in the solution or molten state. So these reductions are usually carried out either by electrolysis or by adding a suitable element as the reducing agent. देखिए यहाँ पे जो मेरे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. यहाँ पे एन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रिडक्शन प्रोसेस, और ई स्टैंडर्ड क्या है उसका पोटेंशियल, यानी M2M+N का वो रिडक्स कपलिंग पोटेंशियल होता है. मुझे मालूम है कि जैसे जैसे रिएक्टिव मीन्स मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है तो हैव लार्जर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो हेंस आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस. लेकिन इफ द डिफरेंस इन ई स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टू रेडॉक्स कपल इज पॉजिटिव, जैसे दोनों का जो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है Cu+2 और Fe, तो Fe का ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि Fe इज मोर एक्टिव देन Cu+2, तो ये हो जाएगा, राइट. तो हमें मालूम है क्योंकि इसका ही सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हो रहा है. तो मैं आपको यह समझना चाहता हूं कि लेस रिएक्टिव मेटल विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोर रिएक्टिव मेटल वी गो इनटू द सॉल्यूशन. ये तो हमें पता ही है, राइट. सो सिंपलेस्ट जो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा, M+ है, उसमें से मुझे M निकालना है, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन उसके लिए मुझे इसकी रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी, कौन सा मटेरियल में यूज करता हूं, कौन सा फ्लक्स में यहाँ पे यूज करता हूं,
तो ये थोड़ी बात, लेकिन इसमें आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने आगे भी पढ़ा होगा, ये मैं अभी ले जा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टू मेटलर्जी। अभी मैंने केमिकल रिएक्शन से समझाया था, अभी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस से वो निकाल रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। जैसे मैंने मोल्टन NaCl में से Na निकाल रहा हूं, या मोल्टन MgCl2 में से मैं Mg निकाल रहा हूं, तो उसको हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी क्या था, आगे मैं थर्मल में क्या था, जो मैं आगे आपको पायरोमेटलर्जी समझा रहा था, कार्बन था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड भी कई बार हो सकता है, या कोई मेटल्स हो सकती है, कोई मेटल्स के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जो यहाँ पे रिएक्शंस करवा रहा हूं वो क्या है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन सर्व्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आई थिंक सो, मुझे पता नहीं है, लेकिन आ गया होगा क्योंकि आपके सिलेबस में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। देखिए फ्यूज्ड एल्यूमिना, जैसे मेरे पास Al2O3 की बात होती है, सो इट्स अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को इतनी तरह से कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा क्रायोलाइट करके, यहाँ पे कंपाउंड है Na3Al F6, देन फ्लोरस्पार है, वो मुझे इसमें डालूंगा, ताकि जो मेरा एल्यूमिना है, विच इज नॉट ओनली मेक एल्यूमिना अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट भी वो नीचे गिरा के 1140 केल्विन पे वो ले आएंगे। तो उसके लिए मैंने ये फ्यूज्ड एल्यूमिना मैंने यहाँ पे उसके साथ मैंने क्रायोलाइट, क्योंकि क्रायोलाइट इज द की फॉर दिस होल हेराल्ड प्रोसेस। ये जो दो साइंटिस्ट थे, हॉल और हेराल्ड, उसने ये प्रोसेस यहाँ पे समझाई हुई है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्यूरिफाइड एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट इज कॉल्ड एज एन होल हेराल्ड प्रोसेस। अभी हम धीरे धीरे वो होल हेराल्ड प्रोसेस समझना चाहते हैं। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन मास इज कैरिड आउट इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी मुझे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल या टैंक लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो फिगर में मुझे यहाँ पे दिखाया हुआ है, मेड अप ऑफ आयन, ये पूरी आयन की टैंक है, राइट, विथ लेयर ऑफ पाउडर कॉक टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। यानी मुझे यहाँ पे जो पाउडर कोक, क्योंकि ऊपर उपला पोर्शन आप देखेंगे तो मैंने जो सॉल्यूशंस भरा हुआ है उसमें मैंने पाउडर कोक का लेयर किया है, ताकि उसका ऑक्सीडेशन बाहर से न हो सके, और दूसरा यहाँ से हीट भी बाहर न जा सके, लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। टेम्परेचर का जो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने इस बात का, वो रखा है नियर अबाउट 1173 केल्विन। अभी मुझे मालूम है कि इसमें तो Al2O3 है, राइट। कार्बन यहाँ पे आप देखेंगे, कार्बन के एनोड्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और कार्बन लाइनिंग यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है वो उसको कैथोड की तरह बिहेव कर रही है। पाउडर कोक मैंने अभी आपको बोला था कि दिस पाउडर के वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर नहीं होगा जैसे एल्यूमिनियम का, और लॉस ऑफ हीट जो हो रही है वो कम कर देगा। तो Al2O3 में क्या है, Al प्लस है, प्लस कहाँ पे जाएगा, माइनस पे, यानी कैथोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है उसका आउटलेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का आउटलेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, तो कि कार्बन है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में जाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। यानी आपके जो ये इलेक्ट्रोड्स है जो है वो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो, क्योंकि वो प्रोसेस कर रहा है। सो जैसे 1 किलोग्राम जैसे मैं एल्यूमिनियम बना रहा हूं, मुझे यहाँ से 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा, तो यहाँ पे 500 ग्राम कार्बन एनोड है वो बर्न अवे। सो बिकॉज ऑफ दिस एनोड्स हैव टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या होगा, द एल्यूमिनियम मेटल जो यहाँ पे है विच इज लिबरेटेड एट द कैथोड, यानी एल्यूमिनियम है वो कैथोड पे लिबरेट होगा, मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर 1173 केल्विन ऑफ द टैंक, राइट। And molten metal being heavier than the molten electrolyte, which is sinks to the bottom of the tank from where it is withdrawn periodically through the tapping hole. So this metal was obtained by this process is 99.995 या 95% प्योर मुझे मिल रही है।
तो ये थोड़ा आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होल हेराल्ड प्रोसेस। तो आपको इस तरह से यहाँ पे ये थोड़ा पॉइंट आपकी बुक में भी आपको यहाँ पे समझाया हुआ है और मैंने भी अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से मुझे एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम कॉपर करना है फ्रॉम लो ग्रेड ऑर्स एंड स्क्रैप में से। तो एक और प्रोसेस है, देखिए, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है। फ्रॉम लो ग्रेड ओर, लो ग्रेड ओर्स आर फर्स्टली लीच्ड बाय, मैंने आपको लीचिंग का जो प्रोसेस समझाया था, बाय ट्रीटिंग विथ एन एसिड और बैक्टीरिया व्हेन कॉपर मेटल्स गोज इनटू सॉल्यूशन, यानी Cu, देखिए Cu+2 आयन, राइट। नाउ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग Cu+2 आयन, जैसे मेरे पास जो मेरा पास लो ग्रेड ओर्स है उसमें जो कॉपर है उसका मैंने एसिड के साथ रिएक्शंस करवाया, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज इनटू Cu+2। अभी मैं उसको ट्रीटेड कहां पे करूंगा, तो क्या स्क्रैप आयन से करूंगा या हाइड्रोजन गैस से मैं उसको निकाल दूंगा। तो मैंने कॉपर+2 और Fe डाला, तो Fe का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गया। और जो कॉपर दूसरी तरह से हाइड्रोजन के साथ भी इस तरह से रिएक्शंस कर पा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि Fe का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कॉपर से ज्यादा है। दूसरी भाषा में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Fe से ज्यादा है, यानी इसका रिडक्शन होगा तो Fe का ऑक्सीडेशन होगा। या कॉपर का हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो EMF सीरीज में देखा हुआ था, तो उसी वजह से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ऑर्स और स्क्रैप में से भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, तो निकालते भी है। तो आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, राइट। अभी जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है वो है अभी जो मेरे एक्सट्रैक्शंस करना है, तो वो, लेकिन वो एक्सट्रैक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स है। मुझे अभी मेटल्स की बात नहीं है, अभी मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स बाय ऑक्सीडेशन, राइट। मुझे उसका ऑक्सीडेशन से निकालना होगा या रिडक्शन से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मेरा जो यहाँ पे सिलेबस में जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आप देखिए। So far we have discussed extractions of metals by reductions, right? हमने मेटल के बारे में बात की थी, but non-metals occur in the combined state in the reduced form. लेकिन जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो तो ऑन द रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रहते हैं, therefore they are generally extracted or isolated by oxidation of their compound. जैसे मुझे एक कॉमन एग्जांपल है ये जो क्लोरीन का, राइट। तो a very common example of extractions based on oxidation is the isolation of chlorine. जैसे मेरे पास एक ब्राइन है, ब्राइन यानी आपको पता होगा NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का जो सॉल्यूशन है हम उसको ब्राइन कहते हैं, जो सी वाटर में से हमें मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, Cl- का वाटर के साथ मैंने रिएक्शंस करवाया है, तो विच इज 2OH- H2 एंड Cl2 में चला गया, तो दिस इज Cl- इंटू Cl2। लेकिन हम जैसा सोच रहे हैं, ये दिस ऑक्सीडेशंस कैन नॉट बी कैरिड आउट एट ऑर्डिनरी केमिकल मेथड, ऐसा करके कुछ नहीं होगा, तो उसको मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस में डालना पड़ेगा। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जो लेसन था उसमें हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि मुझे 3 टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़े थे, मोल्टन NaCl का, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का एंड एक डाइल्यूट NaCl का। तो डाइल्यूट NaCl में तो क्या हुआ था, दोनों में पानी का ही ऑक्सीडेशन हो गया था, यानी एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में क्या हुआ था, लेकिन इसमें पानी तो है ही, थोड़ा तो है लेकिन है तो सही। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि कैथोड होगा, तो कैथोड पे, एनोड पे तो मुझे ऑक्सीजन ही मिलेगा, राइट। लेकिन जो कैथोड है वहां पे मुझे क्लोरीन जैसे वो निकल रहा है, और जो से मोल्टन में तो 2 ही है, Na+ एंड Cl-, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपने देखा होगा कि ये ऑक्सीडेशंस कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से नहीं होगा, देयरफॉर इट इज अकम्प्लिश्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसके लिए मैंने जो ये पूरा रिएक्शंस देखा हुआ है, तो मुझे इससे पता चल रहा है कि उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, तो कि 422 किलो जूल का इसका डेल्टा जी है, यानी मुझे 422 से थोड़ी ज्यादा है उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। सो मिनिमम पोटेंशियल क्या होगा, तो 422 इंटू मैंने उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया है, तो मुझे ये इस तरह से वोल्ट मिलेगा, यानी मैं नियर अबाउट, सो दिस इज ड्यू टू ओवर वोल्टेज। पहले देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर वोल्टेज।
Liberation of gas requires some extra voltage than the theoretical value of standard electron potential. तो इसको हम ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं या बबल वोल्टेज भी बोलते हैं. So this actual electrolysis required an external EMF which is greater than 2.2 volt. So मैं 2.2 वोल्ट से ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा. So this process Cl2 is liberated at the anode and H2 at the cathode while NaOH is obtained in the solution. दूसरे शब्दों में हम कहें तो H2 और NaOH are the byproducts of this electrolysis. And electrolysis of molten NaCl can also be carried out, but in this case sodium metal is liberated at the cathode and chlorine at the anode. तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था. तो ये जो मेरा जो बीच वाला पोर्शन थोड़ा यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है वो था जैसे एक्सट्रैक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स बाय ऑक्सीडेशंस. अभी नेक्स्ट में हम फिर से मेटल्स में चले जाएंगे, लेकिन वो उसका हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन से किस तरह से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन बीच में ये जो पोर्शंस आया था वो नॉन मेटल्स का था, इसलिए मैंने यहाँ बीच में ले लिया है. नेक्स्ट में हम उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे और फिर हम रिफाइनिंग जो मेरा फोर्थ पोर्शन था जो मेटलर्जी का वो उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.